کچھ کہانیاں اتنی حیران کن ہوتی ہیں کہ سننے میں افسانہ لگتی ہے، لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ تاریخ کی چند سب سے عجیب سازشی نظریات حقیقت بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ ایسے راز ہیں جنہیں طاقتور ادارے چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 کانسپریسی تھیوریوں کا ذکر کریں گے جو پہلے ناقابل یقین سمجھی جاتی تھی مگر بعد میں ان کی سچائی سامنے آ گئی۔ آپریشن نارتھ ووڈز 1960 کی دہائی کے اوائل میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک حیران کن منصوبہ بنایا گیا۔ آپریشن نارتھ ووڈز کوئی افواہ نہیں تھی بلکہ یہ امریکی فوجی افسران کی طرف سے تجویز کردہ ایک سنجیدہ منصوبہ تھا جس کا مقصد جھوٹے حملے کروا کر کیوبا پر حملے کا جواز پیدا کرنا تھا۔ کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے دوران لاطینی امریکہ میں کمیونزم کے پھیلاؤ کا خوف امریکی رہنماؤں کو انتہائی اقدامات اٹھانے کی طرف لے گیا۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے محسوس کیا کہ فیڈل کاسترو کی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے لیے ایک مضبوط بہانے کی ضرورت ہے، اور آپریشن نارتھ ووڈز اس کا حل تھا، ایک دھوکہ دہی سے بھرا منصوبہ۔ مارچ 1962 میں تیار کیے گئے اس خفیہ منصوبے میں مختلف تخریبی کارروائیاں اور تشدد کی تجاویز شامل تھیں، جنہیں اس طرح پیش کیا جاتا کہ جیسے کیوبا حملہ آور ہے۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں تھیں بلکہ عوام کی سوچ کو قابو میں لینے کے لیے ترتیب دی گئی تفصیلی حکمت عملی تھی۔ ذرا تصور کریں، یہ تجویز دی گئی کہ امریکی حکومت خود اپنے شہریوں پر دہشت گرد حملے کرے اور اس کا الزام دشمن پر ڈال دے۔ ان تجاویز میں جہازوں کو ہائی جیک کرنے، بم دھماکے کرنے اور یہاں تک کہ کیوبن مہاجرین سے بھری کشتیوں کو ڈبونے کا منصوبہ شامل تھا، اور یہ سب قومی سلامتی کے نام پر۔ سب سے چونکا دینے والی تجویز میں کمرشل فلائٹس کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے یہ حملے کیوبن ایجنٹس کر رہے تھے، طیاروں کا رخ کیوبا کی طرف موڑ دیا جاتا۔ اس واقعے کو عالمی بحران بنا کر عوام کی حمایت حاصل کی جاتی رہی تاکہ کاسترو کے خلاف جنگ کا جواز بنایا جا سکے۔ یہ ہائی جیکنگ نہ صرف مسافروں کو خطرے میں ڈالتی بلکہ جنگ کے لیے براہ راست محرک بنتی۔ فوج کا خیال تھا کہ امریکی عوام ایسے واقعات پر غم و غصے میں آ کر کاسترو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ حکمت عملی ٹھنڈے دماغ سے بنائی گئی تھی مگر اس میں انسانیت کا ذرہ برابر خیال نہیں تھا۔ لیکن یہ پاگل پن یہاں ختم نہیں ہوا۔ آپریشن نارتھ ووڈز میں امریکی فوجی اڈوں پر بم دھماکے اور ایسے خفیہ حملے شامل تھے جنہیں کیوبا کے حملے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ اس منصوبے میں یہ تک شامل تھا کہ امریکی زمین پر دہشت گرد حملے کروا کر کاسترو کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ جب جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے یہ منصوبہ صدر جان ایف کینیڈی کے سامنے پیش کیا تو انہیں توقع تھی کہ وہ اس پر فوری کارروائی کی منظوری دے دیں گے، لیکن کینیڈی حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے اس قسم کی دھوکہ دہی کے سنگین نتائج کو سمجھا اور اس تجویز کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔ یہ امریکی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ کینیڈی کا یہ فیصلہ ان کی اخلاقی قیادت کا عکاس تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ عوام کو جھوٹ کے ذریعے گمراہ کرنا مزید انتشار اور تباہی کا سبب بنے گا۔ ان کا یہ رویہ ان کے فوجی مشیروں کے جنگجویانہ رویے سے بالکل مختلف تھا۔ بعد کے برسوں میں جب آپریشن نارتھ ووڈز کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تو اس سازش کے پیچھے چھپی حقیقت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی عوام کے لیے یہ جاننا ایک بڑا دھچکا تھا کہ ان کے رہنما ایسے خوفناک منصوبے پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ یہ لمحہ حکومت کی اخلاقی حدود پر سوال اٹھانے کا باعث بنا۔ آج آپریشن نارتھ ووڈز ایک یادگار کے طور پر موجود ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کے حصول کے لیے اقتدار رکھنے والے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ ایم کے الٹرا حیران کن حقیقت سرد جنگ کے تاریک سائے میں ایک خوفناک تجربہ بن کر سامنے آیا۔ پروجیکٹ ایم کے الٹرا یہ ایک خفیہ پروگرام جسے CIA نے منظور کیا تھا، انسانی ذہن کے رازوں کو کھوجنے کے لیے شروع کیا گیا، وہ بھی ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو نہایت خطرناک اور اکثر غیر انسانی تھے۔
लेकिन जो कुछ ताकत हासिल करने की ख्वाहिश से शुरू हुआ वो जल्द ही एक ऐसा डरावना ख्वाब बन गया जिसमें लोगों पर उनकी मर्जी के बगैर तजर्बात किए गए। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद ज़हनी तब्दीली लाने वाले मादों पर तजर्बे किए गए जिनमें LSD, हिप्नोटिज्म और मुख्तलिफ नफ्सियाती चालाकियां शामिल थीं। CIA का मानना था कि इंसानी जहन पर काबू पाकर वो ऐसे जासूस तैयार कर सकते हैं जिनकी याददाश्त को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए और जो बगैर सवाल किए अहकामात पर अमल करें। MK अल्ट्रा के सबसे बदनाम अनासिर में से एक ये था कि लोगों को बगैर उनकी मर्जी के LSD दिया जाता था। इनमें कुछ बेघर अफराद वो लोग थे जो बार्स में बगैर किसी इल्म के रज़ाकार बन जाते थे और उन्हें मुफ्त मशरूबात का झांसा देकर लाया जाता था। उन पर इतनी शदीद मिकदार में ये दवा आजमाई जाती कि उनकी जहनी हालत हद से बढ़ जाती और कई अफराद नफ्सियाती तौर पर मुतासिर होकर रह जाते। जैसे जैसे ये प्रोग्राम फैलता गया वैसे वैसे इसके तरीके भी बदलते गए। एजेंट्स ने ऐसे तजर्बात किए जिनमें हिस्सी महरूमी, बिजली के झटके और जिनसी ज्यादती जैसे वहशियाना तरीके शामिल थे और ये सब नफ्सियाती जंग के नाम पर किया गया। इसके नताइज बहुत हौलनाक थे और कई शुरा शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। CIA ने MK अल्ट्रा को मुकम्मल खुफिया रखा, लेकिन वक्त के साथ साथ इस प्रोग्राम की सरगोशियां बाहर आने लगे। 1970 की दहाई के करीब तहकीकाती सहाफ़ियों और कारकुनों ने इस राज को बेनकाब करना शुरू किया और अमरीकी तारीख के एक तारीख बाब पर रोशनी डाली। 1975 में चर्च कमेटी की समाअतों ने MK अल्ट्रा की हकीकत को अवाम के सामने पेश किया। सेनेट की समाअतों में CIA के साबिक एजेंट्स और इस प्रोग्राम के मुतासरीन की लर्जा खेज कहानियां सुनने को मिले। ये वाज़ेह हो गया कि एजेंसी ने इखलाकी हुदूद को इस तरह अबूर किया था जो अमरीकी मुआशरे पर गहरे जख्म छोड़ गया। MK अल्ट्रा के मुतासरीन ने अक्सर शदीद नफ्सियाती मसाइल की शिकायत की, जैसे बेहद बेचैनी, डिप्रेशन और जहनी खलल। कई लोग अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए जिदोजहद करते रहे क्योंकि वो CIA के इस तजर्बाती खेल का शिकार बन चुके थे। एक मुतासरा शख्स जो MK अल्ट्रा का शिकार रहा ने बताया, उन्होंने मेरे दिमाग के साथ खेल खेला और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये हो रहा है। उन्होंने अपनी खौफनाक यादों को बयान करते हुए कहा जो उन्हें हकीकत पर शक करने पर मजबूर करती थी। MK अल्ट्रा के असरात ने हुकूमत को अपनी इखलाकी नाकामियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। टस्कीगी सिफिलिस स्टडी, एक तिब्बी झांसा। अलबामा के दिल मरकज में एक शैतानी तिब्बी तजर्बा हुआ जो धोखा और गद्दारी की एक तारीख दास्तान बनकर तारीख का हिस्सा बन गया। टस्कीगी सिफिलिस स्टडी 1932 में शुरू हुई झूठ के साए में और अफ्रीकी अमरीकी मर्दों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उन्हें सेहत की देखभाल के नाम पर धोखा दिया गया। अमरीकी अवामी सेहत सर्विस की माली इमदाद से की जाने वाली इस तहकीक का मकसद गुर्बत में मुब्तला सियाफाम मर्दों में गैर इलाज शुदा सिफिलिस की कुदरती पेशरफ्त को मुलाहजा करना था। जो एक बीमारी का मुताला करने की कोशिश थी वो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी में बदल गई, जहां तहकीक के हर पहलू में धोखा छुपाया गया था। इन मर्दों को बताया गया था कि उन्हें बैड बिल्ड / खराब खून का इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है, जो सिफिलिस, खून की कमी और थकावट जैसे मुख्तलिफ अमराज को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम इस्तिलाह थी। उन्हें इलाज का वदा किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो सिर्फ एक वहशियाना तजर्बे के हिस्सा बन रहे थे जिन्हें मक्कारी और धोते से अंधेरे में रखा जा रहा था। अगले 40 साल तक मुहक्किकीन ने इन मर्दों पर सिफिलिस के असरात का बुग़्ज़ से मुशाहिदा किया, जबकि वो इलाज की अशद ज़रूरत के बावजूद अक्सर उन्हें इलाज फराहम नहीं करते थे। हत्ता कि जब 1940 की दहाई में सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन को मियारी इलाज के तौर पर तस्लीम किया गया, तब भी उन मर्दों को इससे इनकार कर दिया गया। महज अदाद व शुमार के हुसूल की तलाश में उनकी अपीलों को नज़रअंदाज करते हुए तहकीक का सिलसिला जारी रहा। जब 1960 की दहाई में सिविल राइट्स की तहरीकें जोर पकड़ने लगें तो टस्कीगी सिफिलिस स्टडी के बारे में हकायक सामने आना शुरू हुए। इसके पीछे छपी धोखाधही की खबरें फैलने लगीं और उन अफवाहों ने अफ्रीकी अमरीकी कम्युनिटी और दूर दूर तक गुस्से की लहर को जन्म दिया। कारकुनों ने इस जुल्म और सितम के शिकार अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। मैं एक औसिल बिलवूर ने इस 1972 तहकीक को बेनकाब किया, जिसके नतीजे में अवामी गुस्से की लहर उठी, जिसने तिब्बी अखलाकियात की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डॉक्टर पीटर बाक-ईस्टन, जो एक साबिक अवामी सेहत सर्विस के मुलाजिम थे, उन्होंने बहादुरी से सामने आकर टस्कीगी तहकीक के पीछे की सच्चाई को बेनकाब किया। उनके इंकिशाफात ने गुस्से की लहर पैदा की
और ये कहानी जल्द ही कौमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गई। कांग्रेस की समाअतों के दौरान जिंदा बच जाने वालों ने अपने खौफनाक तजुर्बात सुनाए। उन्होंने तबाहाल जिंदगियों, उजड़ी हुई खानदानों और इस हुकूमत से गद्दारी के एहसास का जिक्र किया जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली थी। दुनिया को निज़ामी नस्ल परस्ती और तिब्बी अखलाकियात की संगीन खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा। इस स्कैंडल के नतीजे में अमरीकी हुकूमत ने नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बायोरल रिसर्च को कायम किया। ताहम बहुत से लोगों के लिए नुकसान हो चुका था, तिब्बी निज़ाम पर एतमाद टूट चुका था। ईरान कांट्रा स्कैंडल। ईरान कांट्रा स्कैंडल सिर्फ एक सियासी स्कैंडल नहीं था, ये धोखाधड़ी का एक पेचीदा जाल था जिसने अमरीकी जमहूरियत की बुनियादों को हिला दिया। इस स्कैंडल के मरकज में सदर रोनाल्ड रेगन की हुकूमत थी जो आलमी बहरानों से निमट रही थी। एक जुर्रतमंदाना और मुतनाज़ा कदम के तौर पर उन्होंने निकाराग्वा में कांट्रा नामी बागी ग्रुप को माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया था जो सैंडिनिस्टा हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन एक मसला था, कांग्रेस ने कांट्रा को फौजी इमदाद देने पर पाबंदी लगा रखी थी। हुकूमत को एक रास्ते की जरूरत थी और उन्होंने ये रास्ता एक गैर मुतवक्के जगह से ढूंढा जो था ईरान। हालांकि ईरान पर असलहे की फराहमी पर तवील अरसे से पाबंदी थी, रेगन की टीम ने ईरान के साथ एक खुफिया मुआहदा किया जिसके तहत ईरान को असलहा फरोख्त किया गया। ये एक खतरनाक जुआ था क्योंकि ईरान को अमरीका का हरीफ दुश्मन समझा जाता था। रेगन इंतजामिया ने इन हथियारों के बदले ईरान पर असर और रसूख हासिल करने और लबनान में हिजबुल्लाह के जेर हिरासत अमरीकी यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाने की उम्मीद की। लेकिन कहानी पेचीदा हो गई। इन हथियारों की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा खुफिया तौर पर कांट्रास की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई कांग्रेस के इख्तियार की खिली खिलाफ वर्जी और अमरीकी कानून की पामाली थी। सच्चाई इस वक्त बेनकाब हुई जब नवंबर 1986 में एक लबनानी मैगजीन ने इस असलहा के बदले यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को बेनकाब किया। इसके बाद फौरन तहकीकात शुरू हो गईं और वाशिंगटन में कोहराम मच गया। अमरीकी अवाम अपने हुकूमत की सदाकत और उसके मकासद हासिल करने के लिए की जाने वाली हदों पर सवालात उठाने लगे। इस स्कैंडल की अहम शख्सियत लेफ्टिनेंट कर्नल ओलिवर नॉर्थ थे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन थे और इस ऑपरेशन को मुनज़्ज़म कर रहे थे। नॉर्थ एक मुतनाज़ा शख्सियत बन गए जिन्हें कुछ लोगों ने हीरो और दूसरों ने मुजरिम करार दिया। टेलीविजन पर होने वाली समाअतों के दौरान उन्होंने मशहूर तौर पर कहा, मैं सिर्फ अहकाम की पैरवी कर रहा था। ये बयान उनके पीछे एक साया बन कर रहा। ईरान कांट्रा स्कैंडल ने एग्जीक्यूटिव ताकत और एहतिसाब पे संगीन सवालात उठाए। अमरीकी अवाम गम और गुस्से में मुब्तला हो गई और हुकूमत से जवाबात का मुतालबा करने लगी। ये स्कैंडल एक परेशान कुन रुझान को जाहिर करता था। इसके बाद सदर रेगन को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस ऑपरेशन के गैर कानूनी पहलुओं के बारे में लाइल्मी का दावा किया, मगर बहुत से लोगों का शक और शुबा बरकरार रहा। ईरान कांट्रा स्कैंडल का असर अमरीकी सरहदों से बाहर भी महसूस किया गया। हमने ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स के खौफनाक राज, MK अल्ट्रा के दिमागी तजर्बात, सुकंगी सीफल्स स्टडी की सिया मीरास और ईरान कांट्रा स्कैंडल के चौंका देने वाले इंकिशाफात खोले हैं। ये महज कहानियां नहीं हैं, ये तारीख के अहम हिस्से हैं जिन्हें हमारी तवज्जो और जांच पड़ताल की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि हम आपको और भी ऐसे राजों तक लेकर जाने वाले हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं।